Now, my dear children, we will study the next concept in this chapter, that is relationship between LCM and HCF. LCM और LCF के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF. With the help of this formula we can find out either LCM, HCF, first number or second number. You will got three things here, and the four things you can find out with the help of this formula. Suppose that कि first number is 66, second number is 420, HCF is 6, then after find LCM. We have taken the example here which we have solved it in the earlier concept. Now we will solve this with the help of this. That means we need to find out the LCM with the help of this method. So we will go to the solution here. कैसे करेंगे solution इसका? We will put the formula, that is first number into second number equal to LCM into HCF. We have done the factor of this. हमने इसके फैक्टर कर रखे हैं वहाँ पर पीछे जो हमने कंसेप्ट दिया था. तो फर्स्ट नंबर इसमें आ रहा है कितना, 66 है. सेकंड नंबर कितना आ रहा है, 420 है. नाउ एलसीएम हमारे पास जो है वो निकालना है हमें. एलसीएम को हम एज इट इज यहाँ रिटर्न करेंगे. एचसीएफ जो है हमारे पास वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 6. नाउ व्हाट वी विल डू हियर, वी आर गेटिंग टू क्वांटिटीज हियर, दैट इज वी विल राइट द सेम हियर 420 हियर. 6 is in the form of the multiplication. We will take this 6 here. जब 6 को हम दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो अगर वो मल्टीपल में तो क्या होगा, डिवीजन में हो जाएगा. एलसीएम को हम अपनी ही जगह रिटर्न किए रखेंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हम इसे कट करेंगे. 6 1 6, 6 1 6. नाउ एलसीएम इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 11 0 0, 11 2 22, 2 carry 2, 11 4 44, then 2 46. You are getting the LCM 4620. Earlier we have find out the previous concept, that is the fundamental theorem. Now this is a very important concept. With the help of this we can find out the relation between LCM and HCF. So what will be the formula? We will put the formula here, first number into second number equal to LCM into HCF. इस चैप्टर पर, इस फार्मूलाज पर हम जो है क्वेश्चंस निकालेंगे. जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास 66, सेकंड नंबर दे रखा है 420, HCF हमारे पास 6 है. फाइंड LCM. LCM निकालना हमें. फॉर्मूला में रख देंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF. फर्स्ट नंबर 66 है, सेकंड नंबर 420 है. LCM, because of we have to find out the value of LCM here, that's why we will not put any value. We will write the same here. Then HCF is 6. Now LCM will be the same on its place. Now 6 is here, is in multiplication. We will put there in division. So we will cut this number. 6 1 6, 6 1 6, 11 we are getting here. Then we need to multiply this number to this number. We are getting the LCM 4620. Hope so that you are trying to understand my questions answer, my dear student. Now we will go to the next concept that is very important. Now my dear student, we will go to the last concept that is very important, and there will be a queries on this. You will see in the chapter. You have to solve. Suppose prove that रूट 2 इज इरेशनल. यहाँ पर रूट 2 दे रखा है, रूट 3 भी आ सकता है, रूट 5 भी आ सकता है, कोई सा भी नंबर आ सकता है इसमें जो इरेशनल हो. अब हम ये कैसे करेंगे, रूट 2 इज इरेशनल कि रूट 2 हमें बताना है कि रूट 2 को हमें कि रूट 2 कैसे जो है वो इरेशनल है, इसे बताना. जब हम इसे प्रूफ देंगे,
इसका हम प्रूफ देंगे तो हमारे पास प्रोसीजर ये रहेगा कि √2 let us assume that √2 is rational number। देखिए हमें दे रखा है, उसने कहा है कि प्रूव करना है हमें √2 जो है इरेशनल है। जब हमें कोई चीज़ इरेशनल देनी होगी तो हम उसे क्या मान के चलेंगे? पहली चीज़ हमें माननी है कि √2 जो है वो क्या है? रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो हम इसके बारे में क्या करेंगे? हम रिटर्न कर देंगे कि therefore √2 इक्वल टू a/b। √2 को हमने क्या मान लिया? a/b के b मान लिया, वेयर a and b is a co-prime नंबर, जहां पर a और b क्या है? वो को-प्राइम नंबर है। अब सवाल ये आता है यहाँ पे कि को-प्राइम नंबर क्या होता है? को-प्राइम नंबर के बारे में जब तक हमें नहीं मालूम होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। को-प्राइम नंबर, सपोज अगर हमने एक नंबर 6 ले लेते हैं, दूसरा नंबर अगर हम 10 ले लेते हैं, हम क्या करेंगे? 6 के फैक्टर निकालते हैं तो 6 के 2 फैक्टर आएंगे, 2 × 3 आएगा। ऐसे ही क्या होगा? 2 × 5 आएगा। 10 के फैक्टर निकाले आपने, 2 × 5 = 10, 2 × 5 आ गए। 6 के निकाले हमने, 2 × 3 = 6, 2 और 3 आ गए। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 जो है वो कॉमन आ रहा है। कोई एक नंबर जो कॉमन आता है तो वो क्या होता है? को-प्राइम नंबर होता है। तो हमने क्या कहा कि √2 इज इक्वल टू a/b, जहाँ पर a/b जो है वो कैसा है? को-प्राइम नंबर है। अगले कंसेप्ट पे जाएंगे हम। अगला जो हमारे पास अगली प्रोसेस होगी वो क्या होगी? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ की स्क्वायरिंग करेंगे हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? √2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू a/b का स्क्वायर हो जाएगा। माय डियर चिल्ड्रन, जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस 2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा। वो कैसे कैंसिल होगा? सपोज हमारे पास √2 का होल स्क्वायर है तो ये √2 की वैल्यू कितनी होती है? 2/1/2 होती है। और ये आपका 2 ये लगा हुआ है, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। 2 हमारे पास ये आ गया। 2 इक्वल टू a/b²। और क्या बताएंगे? 2b² इक्वल टू a²। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 जो होगा, अगर हम यहाँ पर लेके आएंगे तो 2 डिवाइड्स a²। यहाँ हम बता देंगे कि 2 जो है वो क्या करता है? a² को डिवाइड करता है। तो 2b² इक्वल टू a² हो जाएगा। यहाँ पर रिटर्न कर देंगे a² डिवाइजेबल बाय 2। a² जो है वो 2 से डिवाइजेबल है। जब a² 2 से डिवाइजेबल है तो a इज ऑल्सो डिवाइजेबल बाय 2। यहाँ पर क्या है? a² कैसे डिवाइजेबल है? 2 से डिवाइजेबल है। जब a² 2 से डिवाइजेबल है तो a भी 2 से डिवाइजेबल होगा। कैसे? कि a² लिखा हुआ है हमारे पास। अगर हम इसको क्या करेंगे? b इक्वल टू ये b², ये 2 मल्टीपल में था तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ जा करके ये डिवीजन में चला जाएगा। तो a² डिवाइजेबल बाई 2। जब a² 2 से डिवाइजेबल है तो a भी जो होगा वो 2 से डिवाइजेबल होगा। ये हमें ध्यान रखना है, ये रिटर्न करना। प्रोसीजर हमारे पास सेम ही रहेगा, यही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। अब हम क्या करते हैं? अगला कंसेप्ट हमारे पास आता है कि ये इक्वेशन 1 मान लेंगे हम इसे। दिस वन विल बी द इक्वेशन 1 एंड नाउ वी विल गो टू लेट a इक्वल टू 2c मान लेंगे। a इक्वल टू ये जो हमारे पास आएगा इसको हमने क्या मान लिया? 2c मान लिया। तो 2c में c जो होगा वो क्या होगा?
वेयर c इज अ इंटीजर। जो c है वो क्या है, इंटीजर है। इंटीजर यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, आप जानते हैं इंटीजर क्या होते हैं। तो a को हमने क्या मान लिया, c को हमने क्या मान लिया, c को हमने इंटीजर मान लिया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इस a की जो वैल्यू होगी हमारे पास, ये इक्वेशन आ रही है, इसमें रिटर्न कर देंगे 2b एज इट इज लिखा रहेगा हमारे पास, 2b का स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2c आ रही है, 2c। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 2c का स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे, 2b स्क्वायर एज इट इज। नाउ 2 2 ज़ा 4 एंड देन इक्वल टू c स्क्वायर। इस 2 से हम 4 को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2c स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ हम बता देंगे क्या कि b स्क्वायर जो जैसे हमने जो रिटर्न करा था यहाँ पर, वही हम प्रोसीजर यहाँ पे रिपीट करेंगे। क्या b स्क्वायर, इसमें हम बताएंगे b स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाय, b स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाय, b स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाय 2। देयरफॉर जब b स्क्वायर जो है 2 से डिवाइजेबल है, जैसे कि अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ बता देता हूँ, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर है। हम क्या करेंगे, b स्क्वायर को हम ऐसे ही रहने देंगे, 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में c स्क्वायर आ जाएगा। हमने ये लिखी लाइन इस चीज़ को देख करके कि b स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाय 2। अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइजेबल है, देन b इज ऑल्सो डिवाइजेबल बाय 2। तब b क्या होगा, वो भी डिवाइजेबल होगा 2 से। अगर b स्क्वायर डिवाइजेबल है 2 से, तो b इज ऑल्सो डिवाइजेबल बाय 2। क्वेश्चन ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गई है। अब हम जो है इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिएगा आप। नाउ if you will see equation number 1 and 2, then we will see that equation 1 is 2b square equal to a square and equation 2 is b square equal to 2c square. So we will write here, बताएंगे हम यहाँ पे क्या, a and b having a common factor। ए में और बी में यानी कि 1 एंड 2 में हम क्या देख रहे हैं, एक कॉमन फैक्टर है। वो कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो ये 2 है। ए एंड बी हैविंग अ कॉमन फैक्टर 2, दोनों इक्वेशन में कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज So this contradiction is arising। ये क्या कर रहा है, जब दोनों में हमारे पास 2 आ रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन जो हो रहा है वो अराइज हो रहा है बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन, बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशंस। ये लाइन हमें इंसर्ट करनी होगी कि रॉन्ग एजम्पशन क्या है। रॉन्ग एजम्पशन ये है कि हम ए और बी को जो है मान के चले थे, हम √2 को जो मान के चले थे वो मान के चले थे √2 इज अ रेशनल नंबर मान के चले थे। तो हमारा जो एजम्पशन था वो क्या था, रॉन्ग था। अब हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे क्या, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन। हमारी रॉन्ग एजम्पशन की वजह से यहाँ कंट्रोडिक्शन, विरोधाभास पैदा होता है और हम कहेंगे देयरफॉर √2 is an irrational
नंबर। यहाँ हम बताएंगे कि √2 कैसा है। √2 एक इरेशनल नंबर है। इस जो मेथड है माय डियर स्टूडेंट, इस मेथड की आप प्रैक्टिस करेंगे, इसी मेथड पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। माइट बी पॉसिबल यू विल गेट √2, might be possible you will get √3, might be possible you will get √5। इसी कंसेप्ट पर जो है हमें क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज में, और हम उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे। ये चीज़ हमें अच्छे से तैयार करनी है। इन hope so that you are trying to understand my questions answer. If you like my videos, then share and subscribe my channel, my dear student. Thank you so much once again.